ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں رفتار ہی سب کچھ ہے۔ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کو دوبارہ گرنے تک ہم ایک ایسی نہ ختم ہونے والی دوڑ کا حصہ ہیں جہاں رکنا یا تھکنا منع ہے۔ اس تیز رفتار زندگی میں ہم اپنے جسم کو اکثر ایک گوشت پوست کی مشین سمجھتے ہیں۔ ہمارا رویہ اپنے جسم کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ایک لاپرواہ ڈرائیور کا اپنی گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک یہ چل رہی ہے اسے چلاتے رہو، اور جب تک انجن سے دھواں نہ نکلے بونٹ کھول کر دیکھنے کی زحمت نہ کرو۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم کوئی بے جان مشین نہیں ہے۔ یہ کھربوں خلیات یعنی سیلز کا ایک زندہ جاگتا اور انتہائی ذہین نیٹ ورک ہے۔ یہ ہم سے مسلسل بات کرتا ہے۔ یہ ہمیں ہر لمحہ سگنل بھیجتا ہے۔ کبھی یہ سگنل ہلکی سی سرگوشی کی طرح ہوتے ہیں اور کبھی درد کی صورت میں ایک زوردار چیخ۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ان سگنلز کو سمجھنے کی بجائے انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر میں درد ہوا تو گولی کھا لی، تھکاوٹ ہوئی تو چائے پی لی، اور نیند نہ آئی تو نیند کی دوا لے لی۔ ہم اپنے ہی جسم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کے پیغامات کو خاموش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اپنے جسم کی سنیں۔ لسن ٹو یور باڈی کا اصول محض ایک طبی مشورہ نہیں ہے، بلکہ ایک فلسفہ حیات ہے۔ اس کا مطلب ہے ان باریک اشاروں کو ڈی کوڈ کرنا جو کسی بڑی بیماری، کینسر، ہارمونل بگاڑ یا دائمی امراض کے آنے سے مہینوں یا سالوں پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جسم آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور بہترین ڈاکٹر ہے۔ وہ آپ کو بیماری سے بچانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کی زبان سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے جسم کی اس خفیہ زبان کے 15 ایسے اہم ترین حروف تہجی سیکھتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ نمبر 1، مسلسل تھکاوٹ جب ایندھن ختم ہو جائے۔ تھکاوٹ زندگی کا حصہ ہے۔ ایک لمبے دن کے بعد تھک جانا فطری ہے، لیکن اگر آپ پوری رات سونے کے باوجود صبح بستر سے اٹھتے ہوئے خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کریں، یا دوپہر کے وقت اچانک آپ کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہو جائے، تو یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ یہ جسم کی چیک انجن لائٹ ہے۔ یہ کیفیت جسے کرونک فٹیگ کہتے ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جسم کو وہ توانائی نہیں مل رہی جس کی اسے ضرورت ہے، یا وہ توانائی پیدا کرنے کے عمل میں ناکام ہو رہا ہے۔ خون کی کمی، یہ اکثر آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب خون میں ہیموگلوبن کم ہو جائے تو خلیات تک آکسیجن نہیں پہنچتی اور انسان ہر وقت نڈال رہتا ہے۔ تھائرائیڈ، آپ کی گردن میں موجود یہ چھوٹا سا تتلی نما غدود آپ کے جسم کا پاور ہاؤس ہے۔ اگر یہ سست پڑ جائے تو آپ کا پورا سسٹم سست ہو جاتا ہے۔ وائٹامن ڈی، جدید دور میں ہم سورج سے دور ہو گئے ہیں۔ وائٹامن ڈی کی کمی ہڈیوں کے درد اور شدید تھکاوٹ کی بڑی وجہ ہے۔ جسم چیخ کر کہہ رہا ہے میرے ایندھن کی سپلائی لائن چیک کرو۔ نمبر 2، جلد کی تبدیلی، اندرونی صحت کا آئینہ۔ آپ کی جلد آپ کے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے اور یہ آپ کی اندرونی صحت کا براہ راست عکس ہے۔ ڈاکٹر اکثر چہرے کو دیکھ کر بیماری کی تشخیص کرتے ہیں کیونکہ جلد جھوٹ نہیں بولتی۔ خشکی اور بے رونقی، اگر مہنگی کریمیں لگانے کے باوجود جلد خشک ہے تو یہ پانی کی شدید کمی یا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی کمی کا اشارہ ہے۔ جلد کے خلیات کو نمی اندر سے ملتی ہے، باہر سے نہیں۔ کیل مہاسے، اگر آپ کی عمر گزر چکی ہے لیکن مہاسے نہیں جا رہے تو یہ صرف جلد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہارمونل عدم توازن ہے جس سے PCOS خواتین میں یا معدے کی خرابی کا اشارہ ہے۔
खास तौर पर माथे पर दाने, मैदे और ठोड़ी पर दाने हार्मोन्स की निशानदेही करते हैं। पीलापन, जल्द का पीला पड़ना खून की कमी या जिगर के मसाइल यरकान की पहली अलामत है। नंबर 3, नाखूनों की साख्त, मादनियात का नक्शा। नाखून केराटिन से बने मुर्दा खुलियात होते हैं, लेकिन इनकी जड़ें जिंदा हैं। नाखूनों की शक्ल और रंगत में तब्दीली जिसमें मादनियात की कमी का सबसे बड़ा सबूत है। सफ़ेद निशान, अक्सर लोग इसे कैल्शियम की कमी समझते हैं, लेकिन ये जिंक की कमी का भी बड़ा इशारा है, जो कुव्वते मदाफ़ियत के लिए ज़रूरी है। चम्मच जैसे नाखून, अगर नाखून दरमियान से बैठ जाएं और किनारों से उठ जाएं तो ये आयरन की शदीद तरीन कमी है जिसे फौरी तवज्जो चाहिए। टूटते हुए नाखून, अगर नाखून इतने कमज़ोर हैं कि ज़रा सा जोर लगने पर टूट जाएं तो ये थायराइड के मसाइल की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 4, बालों का गिरना, तनाव का बैरोमीटर। बाल गिरना सिर्फ शैम्पू या पानी का मसला नहीं होता। हयातियाती तौर पर बाल जिस्म के लिए गैर ज़रूरी हैं, यानी आप बालों के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। जब जिस्म किसी बहरान से गुजरता है, चाहे वो ग़िज़ाई किल्लत हो या शदीद ज़हनी तनाव, तो वो अपनी तवानाई अहम अज़ा दिल, दिमाग, जिगर को बचाने पर लगा देता है और बालों की सप्लाई काट देता है। तनाव और कोर्टिसोल, शदीद स्ट्रेस के दौरान बाल तेज़ी से गिरते हैं। प्रोटीन और आयरन, अगर आपकी खुराक में प्रोटीन कम है तो जिस्म बालों की नशोनुमा रोक देगा। बालों का गिरना दरअसल जिस्म की तरफ से मदद की पुकार है कि मेरे पास वसाइल कम हैं, मैं सब कुछ नहीं संभाल सकता। नंबर 5, भूख और प्यास की गैर मामूली शिद्दत, मेटाबॉलिक अलार्म। अगर आप पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, या खाना खा रहे हैं लेकिन पेट नहीं भर रहा, तो होशियार हो जाएं। मुसलसल प्यास, ये ज़ियाबतीस शुगर की सबसे क्लासिक अलामत है। जब खून में शुगर बढ़ती है तो जिस्म इसे पेशाब के ज़रिए निकालने की कोशिश करता है। जिस्म से पानी की कमी होती है और प्यास लगती है। मुसलसल भूख, ये भी शुगर या ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो जिस्म में क्रेलिन नामी हार्मोन बढ़ जाता है, जो आपको भूखा महसूस करवाता है, हालांकि आपको खाने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 6, जोड़ों की आवाज़ें और दर्द, जंग और सोजिश। उठते बैठते घुटनों से कट कट की आवाज़ें आना या सुबह के वक्त जोड़ों में अकड़न महसूस करना बुढ़ापे की निशानी नहीं, बल्कि सोजिश की निशानी है। सोजिश जिस्म के अंदर लगी वो आग है जो आहिस्ता आहिस्ता अज़ा को तबाह करती है। इसका मतलब है कि आपकी खुराक में चीनी, गंदम, ग्लूटेन या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, जो जोड़ों में सोजिश पैदा कर रहा है। या फिर ये कि आपका लाइफस्टाइल बहुत सुस्त है। जोड़ हरकत के लिए बने हैं, जब आप हरकत छोड़ देते हैं तो वो जंग आलूद हो जाते हैं। नंबर 7, मुंह की बदबू, अंदरूनी केमिस्ट्री। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी सांस से बू आती है, तो मसला दांतों में नहीं, पेट या फेफड़ों में है। मैदे की खराबी, तजाबियत की वजह से मैदे की गैसेस ऊपर आती हैं। जिगर की खराबी में सांस से एक अजीब मछली जैसी बू आ सकती है। शुगर, ज़ियाबतीस, अगर सांस से फलों जैसी या नेल पॉलिश रिमूवर जैसी बू आए तो ये केटोएसिड्स की अलामत है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए एक जानलेवा हालत हो सकती है। नंबर 8, नींद के मसाइल, जिस्मानी घड़ी की खराबी। नींद सिर्फ आराम नहीं, ये जिस्म का मरम्मत का वक्त है। अगर ये अमल मुतासर हो तो पूरा जिस्म मुतासर होता है। रात 2 से 3 बजे आंख खुलना, चीनी तिब के मुताबिक ये वक्त जिगर की सफाई और रिचार्जिंग का होता है। अगर आपकी आंख रोजाना इसी वक्त खुलती है तो इसका मतलब है कि आपका जिगर दबाव में है, शायद खराब खुराक, अद्वियात या गुस्से की वजह से। सोने में मुश्किल, ये मैग्नीशियम की कमी का वाज़ेह इशारा है।
जो असाब को पुरस्कून करता है, या फिर आपका कॉर्टिसोल तनाव का हार्मोन रात के वक्त बढ़ा हुआ है जबकि इसे कम होना चाहिए। नंबर 9, हाजमे की खराबी, दूसरा दिमाग। साइंस अब मैदे को दूसरा दिमाग कहती है। आपकी खुशी का हार्मोन सेरोटोनिन 90% मैदे में बनता है। अगर मैदा खराब है तो दिमाग ठीक नहीं रह सकता। पेट फूलना, खाना खाने के बाद पेट का गुब्बारे की तरह फूल जाना नॉर्मल नहीं है। ये फूड इंटॉलरेंस जैसे डेयरी या ग्लूटेन से एलर्जी या मैदे में बुरे बैक्टीरिया की ज्यादती SIBO सिबो का इशारा है। कब्ज या मोशन, ये निज़ामे इनहज़ाम की नाली में सोजिश और फाइबर की कमी को जाहिर करते हैं। नंबर 10, ठंडे हाथ पांव, तरजीही दौरान खून। क्या आपने कभी नोट किया है कि गर्म कमरे में भी आपके हाथ और पांव बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं? ये दौरान खून सर्कुलेशन का मसला है। जिस्म एक ज़हीन मशीन है। जब इसे लगता है कि खून या ऑक्सीजन की कमी है तो वो हाथ और पांव, जो जिंदा रहने के लिए कम अहम है, से खून खींचकर दिल और दिमाग, जो अहम है, की तरफ भेज देता है। यह आयरन की कमी या थायराइड के सुस्त होने की बड़ी निशानी है। नंबर 11, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स, शख्सियत नहीं हयातियात। अक्सर हम अपने गुस्से या उदासी को अपने मजाज या शख्सियत का नाम दे देते हैं, लेकिन अगर आपको बिला वजह शदीद गुस्सा आता है या अचानक रोने का दिल करता है तो ये नफ्सियाती से ज्यादा हयातियाती मसला है। हैंगरी, ब्लड शुगर का अचानक गिर जाना इंसान को चिड़चिड़ा बना देता है। विटामिन B12, इस विटामिन की कमी असाबी कमजोरी और डिप्रेशन का बायस बनती है। जिस्म कह रहा है कि इसका केमियाई तवाज़ुन बिगड़ चुका है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। नंबर 12, पट्ठों का फड़कना, बरकी झटके। आंख का फड़कना, टांग के पट्ठे का खुद ब खुद हरकत करना कोई तोहम परस्ती नहीं है। हमारा असाबी निज़ाम बिजली पर चलता है और इस बिजली को चलाने के लिए मादनियात की ज़रूरत होती है। जब जिस्म में मैग्नीशियम या पोटाशियम की कमी हो तो ये बरकी सिग्नल गड़बड़ हो जाते हैं और पट्ठे फड़कने लगते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा काफ़ी या चाय और शदीद तनाव भी असाब को इतना मुतहरिक कर देता है कि वो काबू से बाहर हो जाते हैं। नंबर 13, सर दर्द की मुख्तलिफ इकसाम, मकाम ही पैगाम है। सर दर्द सिर्फ सर दर्द नहीं होता, इसका मकाम, लोकेशन इसकी वजह बताता है। माथे पर दर्द या अक्सर तनाव या नींद की कमी की वजह से होता है। सर के ऊपर ये पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का चीखता हुआ सबूत है। सर के पीछे, गर्दन के पास, ये हाई ब्लड प्रेशर या गर्दन के पट्टों में खिंचाव का इशारा है। गोली खाने से पहले देखें कि दर्द कहाँ है और जिस्म क्या मांग रहा है, पानी, नींद या सुकून। नंबर 14, मीठे की शदीद तलब, तवानाई का बहरान। खाना खाने के फौरन बाद कुछ मीठा खाने की शदीद बेकाबू ख्वाहिश महज आदत नहीं है। फिंगल इन्फेक्शन, आंतों में मौजूद फिंगस की खुराक चीनी है। जब वो बढ़ जाती है तो वो आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है कि चीनी खाओ। एड्रेनल थकावट, जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों तो जिस्म फौरी तवानाई, क्विक एनर्जी मांगता है और चीनी से तेज़ तवानाई का कोई ज़रिया नहीं। लेकिन ये एक ख़तरनाक चक्कर है जो मज़ीद थकावट पैदा करता है। नंबर 15, दिमागी धुंध, जब जहन साफ ना हो, चीज़ें रख कर भूल जाना, नाम याद ना आना या किसी काम पर तवज्जो मरकूज ना कर पाना। अगर ये अक्सर हो रहा है तो इसे उम्र का तकाजा कहकर नज़रअंदाज ना करें। दिमागी धुंध इस बात का इशारा है कि दिमाग में सोजिश है। ये मैदे की खराबी, क्योंकि मैदा और दिमाग जुड़े हुए हैं। नींद की कमी या हार्मोनल अदम तवाज़ुन का नतीजा है। ये जिस्म का तरीका है ये बताने का कि मेरा प्रोसेसर ओवरहीट हो रहा है और इसे दुरुस्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। हमारा जिस्म एक बेहतरीन डिज़ाइन है। ये कभी भी आपको धोखा नहीं देता। ये हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता है। ये 15 इशारे दरअसल इंतबाही घंटियां हैं
जब हम इन घंटियों को दर्द को अद्वियात या आर्जी टोटकों से बंद कर देते हैं तो हम दरअसल इस आग को भड़कने का मौका देते हैं जो अंदर लगी हुई है। आज से ये अहद करें कि जब थकावट हो तो इसे कैफीन से दबाने की बजाय ये सोचें कि मैंने आखिरी बार अच्छी नींद कब ली थी, या क्या मैं सही खाना खा रहा हूँ। जब सर में दर्द हो तो गोली निगलने से पहले 2 गिलास पानी पिएं। जब मूड खराब हो तो खुद को कोसने की बजाय अपना शुगर लेवल और विटामिन चेक करवाएं। अपने जिस्म के साथ एक जालिम मालिक जैसा सलूक ना करें, बल्कि एक शफीक दोस्त जैसा रवैया अपनाएं। इसकी ज़बान सीखें, इसकी ज़रूरियात को समझें, क्योंकि आखिरकार ये दुनिया का वाहिद घर है जिसमें आपको रहना है। अगर आप इसकी सुनेंगे तो ये आपको सेहत, तवानाई और लंबी उम्र का तोहफा देगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।